morning, I would like to request to start with Dr. Bipin Kumar, whose introduction I'll give you once again. Dr. Bipin Kumar, who is a regular and a very renowned columnist, a writer, a national thinker, making significant contributions to Hindi literature and culture. He serves as the National General Secretary of the World Hindi Council, dedicated to the promotion of the Hindi language. Additionally, he works as an editor for various national newspapers, writing editorials on contemporary issues. Dr. Kumar is a president of Bihar Hindi Literary Conference in Patna and is currently the coordinator of successful international conferences both in India and abroad. For 15 years, Dr. Kumar has been actively engaged in the service of Hindi literature and the national language, fulfilling various responsibilities at regional and national levels during numerous conferences. He has previously served as a member of the Book Selection Committee of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, and represented the Indian government at the 11th and 12th World Hindi Conferences in Mauritius and Fiji, respectively. Additionally, he has worked as a coordinator for international Hindi conferences in Vietnam, Thailand, and Cambodia. Dr. Kumar is frequently invited as a guest lecturer in corporate offices and various ministries where he delivers lectures in Hindi. He also participates as a guest speaker in various programs on All India Radio and Doordarshan. In terms of cultural contribution, he is actively involved with organizations like the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad and the Rashtriya Swayamsevak Sangh. In the realm of social awareness, Dr. Kumar organizes seminars and workshops on topics such as Ayurveda, human rights, drug-free initiatives, consumer protection, and women's empowerment. His book, Hindi Aur Samaj, was published by the Indian Universities Association and the World Hindi Council. He has also authored other significant works like Sampurna Yoga and Mind Power Memory. For his remarkable contributions, Dr. Bipin Kumar has received numerous awards and honors, including entries in the Bengal Book of Records and the Indian Book of Records, as well as the National Pride Award 2019, World Hindi Service Award 2017, and Dr. Ram Dhare Singh Dinkar Award 2005. His work symbolizes continuous progress and dedication to the upliftment of the Hindi language and literature. I would like to have a big round of applause, everyone, for Dr. Bipin Kumar, please. Everyone together. And on the dais, we also have Shri D.P. Mishra ji, who is here with us today, who is the Vice President of Ayushman and also member of Hindi Advisory Committee in Rural Development Ministry. I would like to welcome him as well on the dais. And request Dr. Bipin Kumar kindly start the day with his words. I would like to request Dr. Bipin Kumar kindly come on the podium and start the day. Thank you so much. आयुष्कॉन के आज दूसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप सब लोगों ने आज के सत्र का शुरुआत श्री प्रेम रावत जी के वीडियो से हुआ। आप सब लोग जानते हैं कि श्री प्रेम रावत जी जो इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हैं, है ना, पूरी दुनिया में जा कर के शांति के संदेश को सुनाते हैं। आज उनका कार्यक्रम हुआ भी, वीडियो कार्यक्रम से आप सब लोग लाभान्वित हुए। ये राज्य विद्या केंद्र के लोगों को मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार देना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री इंद्रेश जी भी हम लोग के साथ होंगे। आज भी कई विद्वान वक्ता आएंगे और आयुष के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल मैं कई कार्यक्रमों में कुछ विद्वान वक्ताओं की वजह से मैं बोल नहीं पाता,
लेकिन अभी मौका मिला है तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये 2 दिन का जो सम्मेलन है कैसे सफल हो, सार्थक हो, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। क्योंकि एक उद्देश्य है, आसपास में बातचीत होती है तो वक्ता को भी दिक्कत होता है बोलने में, इसलिए हॉल से बाहर जाके बात करेंगे। इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि हम सब लोग स्वस्थ कैसे रहें, कैसे हर समय हम प्रसन्न रहें, खुश रहें। क्योंकि एक तरफ पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु के रूप में देख रही है, हम विकसित भारत बनने का स्वप्न देख रहे हैं। तो ये विकसित भारत बनने का स्वप्न कैसे पूरा होगा, इसीलिए इस कार्यक्रम का जो मूल विषय है वह है विकसित भारत का आधार आयुष से आरोग्य। आरोग्य की प्राप्ति करना है, लेकिन कैसे करना है? आयुष के माध्यम से करना है। तो चूँकि ये आम सम्मेलन की तरह नहीं है कि आप कहीं सम्मेलन में अटेंड किए, कुछ बातें हुई और आप घर गए, बाकी सब भूल गए। एक कल भी मैंने कहा था कि यह सम्मेलन जो है आपके को ज्ञान देने के लिए नहीं, आपके संकल्प को जागृत करने के लिए है। क्योंकि आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं काफ़ी जिम्मेवार हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं। ऐसे में हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि कैसे हम खुद स्वस्थ रहें और कैसे हम परिवार के लोगों को स्वस्थ बनाएं, कैसे समाज के लोगों को स्वस्थ बनाएं, कैसे पूरे देश को स्वस्थ बनाएं। इसी उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। पिछले बार भी विज्ञान भवन में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और वो कार्यक्रम मिलेट्स पे हुआ था। मिलेट्स का उपयोग कैसे करें, उसके बारे में मैंने मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री से सम्मानित हैं खादर बल्ली जी को भी बुलाया था। तो कार्यक्रम जब होता है, जो लोग यहाँ प्रतिभागी बनते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि अब आप हमारे गेस्ट नहीं हैं, अब हमारे डेलीगेट नहीं हैं, अब हमारे इस संस्था के सदस्य हैं, आप इस परिवार के सदस्य हैं। आप सब लोगों को आगे आना होगा, है ना? क्योंकि जो समाज में आगे है उसकी जिम्मेवारी है कि अपने से पीछे जो समाज के लोग हैं उसको कैसे हम आगे लाएं, उसको हम कैसे ताकत दें, उसको कैसे हम स्वस्थ बनाएं। ठीक है कि हम सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, कुछ बीमारी हुई हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज करवा लेते हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और संसाधन के अभाव में उनका पूरा इलाज, उचित इलाज नहीं हो पाता है। आप बात समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ 2 बातें हैं। एक तो उनका उचित इलाज नहीं हो पाता है, दूसरा जब हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करते हैं। तो कल जो आयुष काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं सिस्टर नड्डा जी ने बहुत बढ़िया से कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं करते हैं तो ये केवल आपके बच्चे पे नहीं, उसके बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हम ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाए हैं। मेरा मकसद आपको कुछ जानकारी देना नहीं है, क्योंकि आप सब लोग विद्वान हैं। कहते हैं कि हम लोग वही फॉलो करते हैं जो हम समझते हैं, वो फॉलो नहीं करते जो हम जानते हैं। जानना, प्रेम रावत जी इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, जानना और समझना दोनों 2 चीज़ें भी। जानते तो आप बहुत कुछ हैं, है ना? क्योंकि आप सब लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी जिम्मेवार पद पे हैं। जानना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। जो बातें समझ में आ जाती है उसको आप अपने लाइफ स्टाइल में ढालना शुरू कर देते हैं। इसलिए जिस सम्मेलन का उद्देश्य है कि समझ में कैसे आ जाए,
ताकि जब आप यहाँ से जाएं तो उसको आप फॉलो करें। तो कल भी मैंने श्री राम शर्मा आचार्य की बात को दोहराए थे, हम सुधरेंगे, जोर से मैं जब बोलूँगा एक तरफ तो दूसरी तरफ आप, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के लिए तालियां। यही सबसे बड़ा देश की सेवा है, अपने आप को बदलना, अपने आप को सुधारना। अगर ये कर लेते हैं तो इससे बड़ा सेवा और कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्र सेवा का शुरुआत यही से होता है। इसी उद्देश्य से इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल, जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के द्वारा किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल क्या है? इस आयुष काउंसिल का मुख्य मकसद क्या है? आयुष काउंसिल में एक विचार आया कि जितने भी आयुष के जो चिकित्सक हैं, स्टेक होल्डर हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। और इसका एक जो प्रमुख इनिशिएटिव है जिसको बोलते हैं आयुष नेटवर्क। आयुष नेटवर्क का मेन उद्देश्य है कि जैसे कि आपको कोई भी समस्या हुई, आप आयुष नेटवर्क पर गए, आपके आसपास कोई डॉक्टर है, उससे संपर्क किए, जो हमारे इम्पैनल्ड डॉक्टर्स हैं वो आपको पूरा केयर करेंगे, आपको पूरा लाभान्वित करेंगे बिना किसी कॉस्ट के, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे केयर किया जा सके, आपके परिवार को, आपके लोगों को, इसके लिए आयुष नेटवर्क खड़ा किया गया है। कोई भी आम लोग जो मेंबर हैं या नहीं हैं, वो भी आप आयुष कौन से जुड़ करके, आयुष नेटवर्क से जुड़ करके आयुष से संबंधित जानकारियों को ले सकते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को अपने जीवन पद्धति के बारे में बहुत कम जानकारियाँ हैं। कल भी मैं इस बात की चर्चा किया था कि कब खाना, कितना खाना, है ना, कैसे खाना, है ना। चूँकि आज मौका मिला तो मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूँगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपनी जो चिकित्सा पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति, उस पर आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए। ये बहुत ही ताकतवर चिकित्सा पद्धति है और अपनी चिकित्सा पद्धति पर जब आप विश्वास करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि एलोपैथ को अपना करके आप देख ही रहे हैं, मैं चूँकि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मेरा मकसद किसी पद्धति को छोटा दिखाना नहीं है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा एलोपैथ के डॉक्टर भी मानते हैं। जब आप आयुष को अपनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आप स्वस्थ होते हैं। कोई भी पद्धति आपको स्वस्थ नहीं बना सकती है, आप निरोग हो सकते हैं। निरोग होना और स्वस्थ होना दोनों दो बातें हुई। तो आप सब लोगों को एक संकल्प लेना है कि हमें स्वस्थ होना है। दूसरा कि मन की शांति चाहिए, क्योंकि सारी समस्या का जड़ तो मन की अशांति है। कोई भी अगर रोग पैदा होता है तो पहले कहाँ पैदा होता है? मन में होता है, और उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है ना। पहले सीड यहाँ पे है, और फ्रूट्स के रूप में आप देखते हैं डायबिटीज, हार्ट या फिर ब्लड प्रेशर, ये सब कॉमन डिजीज है। तो किसी भी डिजीज को आप स्वीकार नहीं कीजिए, अगर है तो उसका उपचार ज़रूर कीजिए। अब कई बार देखता हूँ मेरे पास लोग आते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते जैसे लगता है कि डायबिटीज़ होना भी एक उपलब्धि है। बोलते हैं मेरे को डायबिटीज़ है, मेरे को बीपी है। जितना बार आप बोलते हैं वो मतलब बीमारी जो है आपके मन में उतना ही ज़्यादा बैठते जाती है। इसलिए आप पहले मानसिक तौर से हमेशा अपने आप को स्वीकार करें कि मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर जब ऐसा करते हैं तो आपका जो है रोग अपने आप कम हो जाता है ना। ये शरीर है तो थोड़ी मोड़ी समस्या होती रहती है, और इसको लेकर के बहुत गंभीर हो जाना, है ना, ऐसा नहीं करना। आप चिकित्सा जरूर कीजिए, आप लाभ जरूर लीजिए, लेकिन मन में उसको बहुत बड़ा स्थान नहीं देना है।
तो आयुष का मतलब आयुष नेटवर्क, मैं फिर बोलूँगा, आपको दोबारा दोहराना है। आयुष का मतलब ये आप सब लोगों का नेटवर्क है, आपके लिए है। आप सब लोगों को आयुष नेटवर्क से जुड़ना है। पूरे देश भर के डॉक्टर जुड़े हैं और उससे आप लोगों को लाभान्वित होना है। आप सब लोगों को किट भी नहीं मिल पाया था कल, तो आज सबको किट मिलेगा और जो हमारे मेंबर हैं उनको भी किट मिलेगा। तो आप सब लोग शाम में जब जाएंगे तो आप सब सिग्नेचर करेंगे, है ना। जिनका अटेंडेंस नहीं बना अटेंडेंस बना लेंगे, किट भी मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का या आयुष नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। आप सब लोगों का स्वागत है, आप लोग ज़रूर जुड़िए, आप लोग ज़रूर जुड़िए, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार बनाना है, एक स्वस्थ भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है। इसलिए मैं आप सब लोगों से जुड़ने का अनुरोध करता हूं। बहुत कम पैसे में आपको बहुत सारी सुविधाएं, और आपको ही नहीं, ये देश को इसका लाभ मिलेगा। एक बड़ा परिवार बनाना है और बार बार के ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो हमारे मेंबर बनेंगे उन लोगों को सूचना जाएगी, वो लोग आ करके इससे लाभान्वित हो सकते हैं। कभी आप आए, कभी परिवार के लोगों को भेज दिए, कभी पड़ोसी को भेज दिए। ऐसे एक आयुष चेतना को विकास करना है, आयुष को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करना है। क्योंकि अपने आप पर विश्वास, हमने कहा था कल, और इस बात को फिर मैं याद दोहराता हूँ कि जीवन में सुखी होने का रहस्य क्या है। क्या रहस्य है? नहीं, ये सब जवाब सही है, लेकिन सटीक जवाब जो श्री प्रेम रावत जी देते हैं, उनका कहना है कि इंसान तभी पूर्ण सुखी हो सकता है, पूर्ण प्रसन्न रह सकता है, जब इंसान अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। ये केवल स्पिरिचुअल अर्थ में नहीं है, इसका आपके व्यवहारिक जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। Who am I? मैं कौन हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप जो जितने लोग बैठे हैं सब असाधारण लोग हैं, उस परमपिता परमेश्वर के संतान हैं। केवल हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं, जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं। जिस समय हम अपने आप को जान जाएं, अपने आप को पहचान लें, तो जीवन का, आपके जीवन का हर क्षण, हर पल खुशियों से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आपका जीवन हर क्षण, हर पल खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। इसीलिए मैं कल भी इस बात को दोहराया, आज भी दोहराया, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। और जब अपने आप को जानने में, अपने आप को पहचानने में कहीं सहयोग की ज़रूरत हो, तो ऐसे राज विद्या केंद्र के जो संस्थान हैं, जो प्रेम रावत जी हैं, जो इन चीज़ों को बताते हैं, अपने आप के ताकत को एहसास कराते हैं, तो आप उनसे जुड़ के लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब जानेंगे तो खुशियाँ अपने आप आएगी, अपने आप प्रसन्नता आएगी। अब मैं साइंस ऑफ लिविंग के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि साइंस ऑफ लिविंग के 7 एस्पेक्ट्स हैं। राइट ब्रीदिंग, राइट लिख सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोगों को मेल के द्वारा मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। राइट ब्रीदिंग जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है, वो क्या है? श्वास। ये ऐसा महत्वपूर्ण क्रिया है कि जब से आप पैदा लेते हैं और जब तक आप जीवित हैं, हर क्षण हर पल चलता रहता है।
लेकिन इसके महत्व के बारे में हम सब लोग नहीं समझते। किसी चीज़ का महत्व तब हमें समझ में आता है जब वो चीज़ छूटने लगती है। जैसे अभी लाइट है, बाहर जाते हैं, प्रकाश है, तो प्रकाश का महत्व नहीं समझ में आता। लगता है ठीक है, ये तो सुबह हुआ है, प्रकाश होना है, रात में अंधेरा होना है। लेकिन दिन में अगर अंधेरा हो जाए तो मन में घबराहट होती है कि लगता है कुछ पढ़ाई तो नहीं हो रहा है। ऐसे ही जब श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इस बनाने वाले सृष्टि के रचयिता ने इतना बड़ा उपहार दिया है, लेकिन कभी भी हम उस श्वास को समझने का प्रयास नहीं किए। कभी ठहर करके, कभी एक दिन, एक घंटे के लिए भी, कि ये कितना बड़ा चमत्कार है जिसके कारण हम सब लोग जीवित हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। श्वास की चिंता तब होती है जब यह श्वास छूटने लगता है। तब इंसान उस वक्त ये सोचता है, जब श्वास से छूटने को होता है तब सोचता है कि एक श्वास और, मतलब उस श्वास को हम जी भर के ले लें और उसको छोड़ें, उसका आनंद लें, उसका अनुभव करें, उसका एहसास करें। जब इतना श्वास मिला तो हम उसके महत्व को, उसके मूल्य को नहीं समझे। ये श्वास केवल महज श्वास नहीं है, ये केवल आपको जिंदा नहीं रखती है, आपके इमोशन को भी कंट्रोल करती है। आपके जीवन के हर क्षण, हर पल को नियंत्रित करती है। आपके जीवन में सुखी और दुख के लिए भी उत्तरदायी है, सफलता और असफलता के लिए भी उत्तरदायी है। बहुत बड़ा रहस्य है। इस श्वास के बारे में बोलूं तो मैं 2 दिन तक लगातार बोल सकता हूं। कैसे ये जीवन को प्रभावित करता है, कैसे ये जीवन को लाभान्वित करता है। ये श्वास का आना और जाना केवल खेल नहीं है, बहुत बड़ा चमत्कार है। हर क्षण, हर पल आपको ये ताकत देती है। तो कई उदाहरण के जरिए हम समझेंगे। 1 मिनट में हम लोग कितना बार श्वास लेते हैं? कितने बार लेते हैं? 18 से 20। ऐसा है कि हम लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि कितना लेते हैं। आप बताइए। आप तो डॉक्टर हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मनुष्य का जो एवरेज ब्रीदिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि श्वास का उम्र है आपकी लंबी आयु से। अगर आप लंबी आयु जीना चाहते हैं तो श्वास को नियंत्रित करना सीखिए, श्वास को रेगुलेट करना सीखिए, श्वास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिए। श्वास का संबंध है आपकी मानसिक शांति से। तो अभी मैं ये सिद्ध करूंगा कि लंबी आयु से एक ऐसा संबंध है। जैसे कुत्ते की उम्र कितनी होती है? 12 साल होती है। वो 1 मिनट में कितना श्वास लेता है? 30 से 40। घोड़े का कितना होता है? 15 से 20। और श्वास कितना लेता है? 25 से 30। मनुष्य का जो एवरेज एज है वो है 100। तब जब वह श्वास प्रत्येक मिनट 12 बार ले। हाथी का उम्र कितना होता है? 200 साल, है ना? उसका प्रत्येक मिनट एवरेज ब्रीदिंग कितना है? 6 बार, 5 से 6 बार। और कछुए का? तो कछुए का जो उम्र है वो 300 साल है।
और वो श्वास लेता है 2 से 3 बार, है ना। तो आपने देखा कि श्वास का संबंध जो है लंबी आयु से है। अगर आप लंबी आयु चाहते हैं तो प्राणायाम के जरिए, योग के जरिए आप जो है श्वास को लंबा और गहरा लीजिए, है ना, लंबा और गहरा श्वास। कई बार क्या होता है कि कहीं मैं जाता हूँ और पास में होता है, मैं देखता हूँ कि उसकी श्वास तेज चल रही है, तो मैं बहुत चिंतित हो जाता हूँ और मैं तुरंत उसको रिमाइंड करता हूँ कि आपकी श्वास तेज चल रही है, आपको थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, श्वास लंबी और गहरी लेने का अभ्यास करना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर ये सेशन मैं ही लेता रहूं और कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी कराऊं आप लोगों को, ताकि उसे लाभान्वित हों। तो एक प्रैक्टिकल अभी हम लोग करेंगे ताकि कुछ उसको अनुभव कर सकें, क्योंकि हम लोग जीवन के भाग दौड़ में उन चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाए। तो अभी अगर हम करते हैं तो कुछ विशेष अनुभूति होगी, कुछ विशेष एहसास होगा। तो आप सब लोग सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, आँख को बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर आइज। लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे, आवाज़ नहीं, और छोड़िए। मन में इस भावना के साथ कि सामूहिक रूप से किया गया अभ्यास हमारे मन को बहुत शांत कर रहा है, बहुत स्थिर कर रहा है। ये जीवन का बहुत बड़ा उपहार है और अभी हमें मौका मिला है उस उपहार को स्वीकार कर, अनुभव करने का। पूरे आनंद के साथ अभ्यास को करते रहिए। धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़िए, और आपके तन और मन पे जो प्रभाव रहा उसको अनुभव करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल शांत, स्थिर। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हम इस वक्त अनुभव कर रहे हैं। हम बिल्कुल शांत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं। ब्रह्मानंद, ब्रह्म शांति का अनुभव। केवल और केवल हमारा ध्यान श्वास पे है। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, जब हम अपने श्वास को समझ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उत्सव के रूप में ले रहे हैं। बिल्कुल शांत। ये प्रकृति बिल्कुल शांत है और हमारा भी मूल स्वभाव शांत होना है।
जब भी हम शांति में जाते हैं तो स्वर्गिक सुख का आनंद होता है। ये शांति का क्षण हमारे लिए अलौकिक क्षण है, आनंद का क्षण है, सौभाग्य का क्षण है, खुशियों का क्षण है, उपलब्धियों का क्षण है, उत्सव का क्षण है। आनंद लीजिए, धीरे धीरे श्वास को लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। श्वास का आना और जाना जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। उस चमत्कार को स्वीकार कीजिए। इस शांति के लिए, इस अनुभूति के लिए आप अपने मार्गदर्शक को धन्यवाद दीजिए, हृदय से आभार दीजिए कि आज मौका मिला है अपने जीवन को समझने का, अपने श्वास को समझने का, जीवन की भाग दौड़ से रुककर एक ठहराव का आनंद लेने का, और इस ठहराव के क्षण में श्वास के चमत्कार को हम स्वीकार कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। श्वास लीजिए और धीरे 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 छोड़िए। धन्यवाद। अभी आँख को बंद रखिएगा। धीरे से आप दोनों हाथों को रगड़ करके चेहरे से लगाइए। आँखों को खोल दीजिए। कैसा अनुभव हुआ? जिन लोगों को अच्छा अनुभव हुआ है हाथ को खड़ा कीजिए। सब लोगों को अच्छा अनुभव हुआ है? धन्यवाद। ऐसे ही हर दिन थोड़ा समय निकाल करके आप इसका अभ्यास कीजिए। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है कि ये श्वास आ रही है और जा रही है। ये श्वास के आने और जाने को केवल साक्षी भाव से देखिए। केवल इतने मात्र से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। जीवन में खुशियाँ आएगी, प्रसन्नता आएंगी, आप हर समय आनंद में रहेंगे। क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित होता है जब मैं पेपर पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस तरीके से मानवता का क्षरण हो रहा है। मैं देखता हूँ, कल भी मैं तो पेपर अब उस तरह का जो आता है मैं ऊपर पढ़ता हूँ फिर नीचे नहीं पढ़ता हूँ। तो जहाँ देखता हूँ कि जो कल भी मैंने कहा था उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ कि भाई भाई, पति पत्नी, परिवार में आपस में एक दूसरे को समझने के तैयार नहीं है। इतनी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ गई है कि मानवता का नामो निशान नहीं है। तो इसी उद्देश्य से ये सब सम्मेलन आयोजित किया जाता है। क्योंकि जब हम उग्र होते हैं, जब हम क्रोधित होते हैं, ये निशानी है कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। जब मजबूत इंसान के लक्षण क्या है कि हर स्थिति में आप शांत रहें, स्थिर रहें। क्योंकि कल मैंने ये तो इस विज्ञान भवन के हॉल नंबर 5 को बुक कराया था।
दोनों दिन के लिए, है ना, कल के लिए भी और आज के लिए भी। लेकिन जो व्यवस्था देखते हुए उन्होंने कहा कि वो हॉल तो किसी और को दे दिया। तो बोला, मैंने पूछा कि फिर मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि दो ऑप्शन है, एक छोटा हॉल है, एक बड़ा हॉल है, तो उसको मैं दे सकता हूँ। हमने कि जो देना चाहो आप दे दो, ताकि मैं वहाँ जा कर के कुछ कर लूँ। तो कहा कि आप बड़े वाले हॉल ले सकते हैं। हमने कहा अति उत्तम। मैं इस हॉल को लेकर के और ज़्यादा खुश हो गया। जो होता है अच्छा होता है, प्रभु की इच्छा मानिए। इस मंच पे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम होता है, मैं बराबर आया करता हूँ इस हॉल में। हमने कहा कि अच्छा होगा कि हमारा इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का भी कार्यक्रम हो जाएगा और उसी हॉल में जाके आनंद लूँगा। तो बिना किसी बात की परवाह किए हुए हर क्षण को स्वीकार करना, हर क्षण का आनंद लेना। क्योंकि कोई आम लोग होता तो ये सोचता है कि उस हॉल में करूँगा तो हॉल खाली लगेगा, फिर ये होगा वो होगा। हमने कहा नहीं, इसका दूसरा पक्ष भी है, आप दे दो, मुझे अच्छा है और मैं आकर के खुश हूँ। तो कई बार मैं इस कार्यक्रम में आया जहाँ पे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बैठ करके और राष्ट्रपति जी संबोधित करते रहते हैं। आज मुझे भी सौभाग्य मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो प्रकृति की एक अलग योजना है, हमारी अलग योजना है। इंसान क्या करता है कि वो परेशान हो जाता है, जब उसके मन का ना हो तो परेशान हो जाता है। हर समय अपने आप को सरेंडर करना। मैं बराबर कार्यक्रम करता रहता हूँ और कार्यक्रम में क्या होता है कि कभी आता है मेरे पास फ़ोन कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और कई बार फ़ोन आता है कि फलाने मंत्री का आना रद्द हो गया। तो जब बोलते हैं कि आ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा है, और जब बोलते हैं कि नहीं आ रहे हैं तो बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो सोचता है कि किसी पागल आदमी से बात हो रही है, क्योंकि सब लोग बोलता रहता है कि नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, आना चाहिए, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है। तो बोलता है ऐसा आपने क्यों बोला? हमने कहा कि जो ईश्वर की इच्छा है वही सर्वोपरि है ना। तो एक बंगाल में एक कहावत है, बंगला में, सकोले हर इच्छा, सब प्रभु की इच्छा है। आपका है आना, मेरा है आना, इस तरह की गतिविधि को होना। क्योंकि अभी हमारे दो वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, ये लोग, मैं पीछे हो जाता हूँ। आप प्रोफेसर संध्या बासायन जी हैं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, अदिति महाविद्यालय में, और आप विश्व हिंदी परिषद, जो हिंदी और भारतीय संस्कृति के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया में, दुनिया के कई देशों में प्रचार प्रसार करती है अपनी भाषा का, उसके शैक्षिक प्रकोष्ठ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप श्री डी.पी. मिश्र जी हैं, जो भारत सरकार में वरिष्ठ अधिकारी रहे और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। और साथ ही साथ आप विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आप दोनों को बहुत साधुवाद है, आभार है, क्योंकि अभी आप लोगों ने 25-26 जुलाई को बहुत बड़ा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया और बहुत ही सफल रहा, जिसकी चर्चा मतलब पूरे देश और दुनिया में हुई। माननीय गृह मंत्री जी को भी इसका संज्ञान लिया। ऐसे गतिविधियां विश्वविद्यालय में और अलग अलग राज्यों में, देश में, देश से बाहर होती रहती है। तो जब आप लोग जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़े परिवार से जुड़ने का मौका मिलेगा। और मैं तो चूँकि संगठन करता हूँ तो मेरा काम ही है जोड़ना। मैं सब लोगों को आमंत्रित करता रहता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि कई मंचों पे काफ़ी लोग आ करके संपर्क करते हैं। कभी लोग वहाँ पे, चूँकि इस हॉल के जस्ट पीछे जो दीवार है उसके पीछे हमारे लोग बैठे हैं, जहाँ पे आपको किट भी मिलेगा और जहाँ पे आप बैठ करके जुड़ सकते हैं, है ना, आगे और लाभान्वित हो सकते हैं। तो श्वास पे थोड़ा चर्चा हुआ था कि श्वास का संबंध है हमारे मन की शांति से। श्वास का संबंध हमारे मन की शांति से कैसे है, कभी आपने एहसास किया है?
आप कभी फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, ट्रेन पकड़ने जाते हैं और आपको लगता है कि आप लेट हो चुके हैं, तो क्या होता है उस समय? मन अशांत होता है। मन अशांत होते ही आपका श्वास लेने का जो है ना, लेने और छोड़ने की स्पीड बढ़ जाती है। अचानक आपने कुछ समाचार सुना जिससे आपके मन में परेशानी हो गई, तो आपके श्वास में क्या होती है? तेजी आ जाती है। कहीं आप खरीदारी करने जाते हैं, आपका बटुआ गुम हो गया, आपका पर्स गुम हो गया, क्या होता है? मन अशांत हो जाता है। मन के अशांत होने से ही क्या होता है कि आपका श्वास लेने और छोड़ने की गति जो है बढ़ जाती है। तो श्वास का संबंध है लंबी आयु से, श्वास का संबंध है मन की शांति से, है ना। और श्वास के संबंध है आपके जीवन के सफलता से। जब आप शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, उस समय आप जो भी निर्णय लेते हैं उस समय क्या होता है? अच्छा निर्णय लेते हैं। तो जीवन विज्ञान जो साइंस ऑफ लिविंग है, उसके अंदर में मैं 7 चीज़ों को बताता हूँ, है ना। पहला क्या है? राइट ब्रीदिंग। दूसरा है राइट डाइट। डाइट के बारे में बताऊंगा, कब खाना, कैसा खाना, क्या नहीं खाना। राइट थिंकिंग, हर समय सोच चलता रहता है, उसको कैसा सोच रखना चाहिए, है ना, ताकि आपके मन और तन पे इसका अच्छा प्रभाव पड़े। राइट स्लिप, सही नींद। नींद का बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि आपका जीवन का 1/3 हिस्सा केवल सोने में भी जाता है। अगर सही तरीके से आप सोना सीख लें तो आपका स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। इसीलिए ओशो ने बहुत अच्छा कहा है, जिन सोना जिन जागना। जो अच्छे तरीके से सोच सकता है वही अच्छी तरीके से जाग सकता है। तो जी 4 घंटे सो करके, ये भी बहुत अच्छा आपने कहा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो तो घोड़े पर चलते सो जाते थे। तो वही सोने की कला को सीखना है कि 4 घंटे सो करके भी आप कैसे अपनी नींद को पूरी कर सकते हैं, है ना। तो सोना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा कला है। इससे भी आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन प्रभावित होता है। राइट पोस्चर, कैसे आप बैठते हैं, कैसे आप खड़ा होते हैं, कैसे चलते हैं, इसका भी आपके तन और मन पर प्रभाव पड़ता है। राइट कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जीवन का पूरा खेल कम्युनिकेशन पे टिका हुआ है ना। आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, राइट सिलेक्शन। जीवन जो है, आपके जीवन की सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका चुनाव कैसा है, सिलेक्शन कैसा करते हैं, है ना। जो कई क्या है कि मेरे पास लोग आते, वो बनना चाहते थे इंजीनियर और बन गए डॉक्टर। कोई बनना चाहता था संगीतकार और बन गया क्रिकेटर। और जीवन में वो जो है पूरा जीवन उसका कुंठित होता रहता है। तो जीवन में हर क्षण हर पल सिलेक्शन की ज़रूरत है, चुनाव की ज़रूरत है। जैसे मुझे यहाँ कार्यक्रम करना है, तो कार्यक्रम कहाँ करना, कैसा एम्बियंस में रखना, ताकि हम ज़्यादा बढ़िया से कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये तो अभी मैं ब्रीफ में चर्चा किया, इन 7 पर मौका मिला तो मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। और इसको बोलते हैं जीवन विज्ञान, क्योंकि आप बहुत सारे ज्ञान विज्ञान को आपने सीखा है, लेकिन जीवन विज्ञान को आप जब सीख जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है, जीवन जीने का अंदाज बदल जाता है। जैसा कि शुरुआत में ही कहा कि आप सब लोगों के पास अनंत ताकत है, उस ताकत को पहचानना, उस सामर्थ्य को जानना, यही जीवन का उद्देश्य है ना। जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है, मृग ढूंढ, क्या बोलते हैं, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढस बनवाए। हाँ, मृग नाभि कस्तूरी बसे मृग ढूंढत बनवाए। मतलब आपके
इस शरीर में ही, इस तन में ही, इस मन में ही सारी ताकत है, लेकिन आप सब लोग उसके अज्ञानता के कारण आप भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हर समय खुश रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, हर समय आनंद में रहिए। यही इस सम्मेलन का उद्देश्य है। आप खुद भी आनंद में रहिए और दुनिया के लोगों को कैसे सुखी बनाएं, कैसे आनंदित करें, यही इस सम्मेलन की सार्थकता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ प्रचारक हैं माननीय इंद्रेश जी आ चुके हैं। अब टी ब्रेक के बाद हम लोग फिर तुरंत यहाँ पे आएंगे और फिर आगे उनका उद्बोधन भी सुनेंगे, उससे लाभान्वित होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।